अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मारिया नसीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम फाइल। हर घर में तकरार होती है। मियाँ बीवी के दरमियान होने वाली नोक झोंक जिंदगी का एक हिस्सा है। तकरार में शिद्दत आ जाए तो अक्सर गलतफहमियां जन्म लेती हैं। गुस्से में आकर कुछ फैसले कर लिए जाते हैं जिस पर बाद में इंसान पछताता है। मैं छोटी जी सी मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। 10 दिन में ठोकियां रंगा खादियां। उस तो बाद मैं अजहर नाल पसंद की शादी की और मैं ते मेरी बच्ची घर इन्हां दे रहन लग पे। थोड़ी जी मुँह मारी हो गई, इन्हें मैनू घरों कढ़ दिता। मेरे अब्बू ने रस्ते सारे बंद कर दिते सी मेरे। दरबदर की ठोकरें खाने के बाद जहां रोजगार और सहारा मिला, वहीं पर जिनसी दरिंदे घात लगाए बैठे थे। 4 अफराद ने खातून को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया, इस पर तशद्दुद किया। जान बचाती खातून पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस ने भी कोई बात न सुनी। फिर कैसे खातून दोबारा साबका शोहर के पास पहुंची। इन्हें मैनू घरों कढ़ दिता। मैं 2 दिन मैं रोड़ा तो सौंदी रही। उस तो बावजूद इन्हां दोस्त सी इमरान भौड़, उन्हें मैं कॉल की। मैं कि भाई मेरे को रहन नूं कोई जगह ही नहीं है, ते तुसीं जां अपने घर लै जाओ मैनू, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖੇਗੀ, 3 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਰਤਨ ਧੋਤੇ ਨੇ। 26 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤਾ। 4 ਲੋਕ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਈ, 4 ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਇਹ ਕੀ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੂਨ ਖਰਾਬੀ ਕੀਤੀ ਰੱਖੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਮੇਰਾ ਨੰਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਥਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਿਟੀ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਲੰਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਦੁਕਾਨ, ਉੱਥੇ ਗਈ। ਉਹ ਪਠਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਬਣ। ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਵੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਥਾਣੇ ਆ ਜਾਓ। ਥਾਣੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੁਸਰਤ ਬੀਬੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਜ਼ੇਵਰ 2 ਤੋਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੇਰਾ 5000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਰ ਬਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਪਈ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੀਬੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੈਠੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਛੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਘਰ ਦੇ ਦੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਬਿਠਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਾਂਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਅਗਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ। ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਅਹਿਸਾਸ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਵਾਜ਼ਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ नहीं सुन रहा हैगा। खातून ने साबका शोहर के साथ जिंदगी गुजारने के लिए एक और शख्स से निकाह कर लिया ताकि इस्लामी शराइत भी पूरी कर सके, लेकिन जब उसने उस शख्स से तलाक मांगी तो उसने खातून को छोड़ने से इनकार कर दिया। खातून अब कोर्ट से रुजू कर रही है। पास गई थी तो पुलिस का बेसिक जो मोटिव या हम उसको कह लें कि मुखफ़फ़ क्या है, पुलिस होती है, पुलिस स्टैंड्स फॉर पोलाइट, ओबीडिएंट, लॉयल, इंटेलिजेंट, कोऑपरेटिव एंड एफिशिएंट। कोऑपरेशन करना चाहिए था पुलिस को, फिल फॉर मुलजमान को बिहाइंड द बार करना चाहिए था। इस मतलब कितने रोज़ाना 24/7 वक़ूआत हो रहे हैं, बग़ैर पूछे बताए पुलिस बंदे को अरेस्ट करके बिहाइंड द बार कर लेती है। एक मासूम बच्ची के साथ, उसकी छोटी सी बेटी है, उसके माँ के साथ ज़्यादती हो रही है, उनको दरिंदों की तरह नोचा गया उस औरत को। वो पुलिस के पास फटे पुराने कपड़ों में लहूलुहान होकर गई है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन डिले भी कर सकते थे, पहले मुलजमों को पकड़ते, उस औरत को ले आते, मतलब वो मुसरत उर्फ बिल्ली नामी,
اس عورت کو پہلے پکڑتے، وہ خود ملزمان کا بتاتی، وہ بتاتی کہ یہ بندے تھے. اگر پولیس اپنا کام اچھے سے کر لیتی، کیونکہ کورٹ اور کچہری اور وکلاء اور عام سویلینز نے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ کر چکے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، میں بھی اپنا کام کر چکا ہوں وداؤٹ اینی فی. لیکن اگر پولیس ان کو اریسٹ کر لیتی، ملزمان کو بیہائنڈ دا بار ہوتے، تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ آنے والے وقتوں میں بھی ایسے ملزمان کو ایسے کبھی حرکات کرنے سے سبق میں. سر ہم نے اس کی پٹیشن بھی دائر کی ہوئی ہے، ہم اس میں میڈیکل بھی کروا چکے ہیں، اس کے سویبس بھی بھیجے ہوئے ہیں، ٹی ایس پی کبیر والا نے، ڈاکٹر صاحبہ نے بھیجے ہوئے ہیں، ان کا میڈیکل ہو چکا ہے. شی واز گینگ ریپ ہوا اس کے ساتھ، بیچاری اس کے سر پر چھت نہیں ہے، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، پھر بھی وہ انصاف کے لیے لڑ رہی ہے. سلام ہے اس کی جرأت کو، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کے لیے کتنا تعاون کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ پولیس نے اجتماعی زیادتی کے واقعے پر نوٹس کیوں نہ لیا؟ کیا کہنا ہے پولیس کا؟ آئی جی پنجاب پولیس جو پولیس کی جانب سے گڈ گورننس کے جو دعوے کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ولاگ ڈالتے ہیں، اس کہانی میں یہ تمام کی تمام صورتحال جو ہے وہ برعکس ہے. اور سٹی کبیر والا کی پولیس نے صرف اس لڑکی کی داد رسی اس لیے نہیں کی، اس لیے اس کی کارروائی نہیں کی چونکہ یہ بے سہارا تھی، بے بس تھی اور لاچار تھی اور غریب خاتون تھی، چونکہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا. تو اب دوسری طرف پولیس یہ بھی بات کر رہی ہے کہ مسرت مائی جو ہے، جو اڈے کی نائکا ہے، اس نے ماضی میں بھی اپنا مختلف لوگوں کے اوپر جو ہے ناجائز مبینہ زیادتی کے اور اغوا برائے زنا کے جو ہے وہ مختلف اوقات میں مختلف مقدمات جو ہے وہ درج کروا رکھے ہیں. اس لیے جو ہے اس لڑکی کی جو ہے وہ کارروائی نہیں کی جا رہی، جبکہ اس نورین لڑکی نے جو ہے اپنی درخواست کے اندر جو ہے اس اڈے کی نائکا مسرت مائی کو مرکزی کردار ٹھہرا کر مرکزی ملزمہ ٹھہرایا اور اس کے 4 گاہکوں کو جو ہے وہ ملزم جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ٹھہرایا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ قصوروار ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے. اب نورین بی بی نے جو ہے اپنی بیٹی کے ہمراہ مختلف اوقات میں تھانے سٹی کبیر والا میں اپلیکیشن موو کی ہے، ڈی پی او خانیوال کے پاس جو ہے وہ درخواست گئی ہے، لیکن اس کی سنوائی نہیں ہوئی. بلاخر یہ لڑکی جو ہے وہ عدالت میں پہنچ گئی اور عدالت سے جو ہے وہ انصاف کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے جو ہے یہ دکھائی دے رہی ہے. اس کے علاوہ تھوڑا سا میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں گا کہ یہ جو لڑکی ہے یہ بارہا مرتبہ جو ہے انصاف لینے کے لیے تھانے میں گئی، لیکن اس کی کسی نے نہیں سنوائی. خاتون سابقہ شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اس واقعے میں چھپی اصل کہانی کیا ہے، آئیے جانتے ہیں. تو ان کے شوہر نے جو ہے اپنے قریبی دوست کے ساتھ حلالہ کروایا اور اب جس شخص کے ساتھ حلالہ کروانے کے لیے جو ہے وہ نکاح کروایا، اب وہ بھی طلاق نہیں دینا چاہتا اور غلام حسین بھی نورین بی بی کو جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، جبکہ نورین بی بی جو ہے وہ اپنے سابقہ شوہر غلام حسین کے ساتھ جو ہے وہ رہنا چاہتی ہے، اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنا چاہتی ہے، لیکن وہ اس تمام تر صورتحال کے باعث جو ہے جو ہونے والے ظلم کے خلاف جو ہے وہ انصاف لینا چاہتی ہے. اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جو مرکزی کردار ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے اور میں اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ رہنا چاہتی ہوں، اور اس امید کے ساتھ وہ عدالت میں پہنچی ہے کہ اس کو انصاف جو ہے ایک نہ ایک دن ضرور ملے. دیکھیں اس واقعے میں چھپی اصل کہانی معاشرے کے بدترین رخ کی جو ہے وہ عکاسی کرتی ہے. جرم کی اس داستان میں نورین بی بی کے شوہر نے معمولی سی تلخ کلامی پر بجائے اس کے کہ وہ اپنی مسز کی جو تلخ کلامی تھی اس کو برداشت کرتا، بلکہ الٹا انہوں نے اپنی بیوی اور کم سن 4 سالہ معصوم ننھی بیٹی کو جو ہے رات کی تاریکی میں ٹھٹرتی رات کے اوقات میں جو ہے اپنے گھر سے نکال دیا. اور چونکہ نورین بی بی نے 5 سال پہلے جو ہے غلام حسین کے ساتھ پسند کی شادی کر رکھی تھی اور پیچھے سے اس کے والدین نے بھی اس کے لیے جو ہے وہ اپنے گھر کے دروازے جو ہیں وہ بند کر رکھے تھے. اسی دوران جو ہے شوہر نے بھی جو ہے معمولی سی تلخ کلامی کے بعد گھر سے نکالا تو یہ ایک راہگیر کے جو ہے ہتھے چڑھی، جس کے بعد جو ہے اس ظالم شخص نے بجائے اس کے کہ وہ کسی سیف جگہ پر ان کو جو ہے وہ محفوظ کرتا، کہیں پر رات ٹھہرنے کے لیے جگہ دیتا، لیکن انہوں نے ایسا کیا کہ اس متاثرہ لڑکی کو نورین بی بی کو اور اس کی معصوم بیٹی کو جو ہے ایک فحاشی کے اڈے کی نائکا مسرت مائی کو جو ہے وہ مبینہ طور پر فروخت کر دیا اور اس نائکا نے ظلم کے جو ہے وہ پہاڑ گرائے اور اس متاثرہ لڑکی کو اپنے گھر کے گراؤنڈ فلور سے جو ہے وہ میڈیسن لانے کے لیے جب کہا تو میڈیسن لانے کا جھانسا دے کر اپنے 4 گاہکوں سے جو ہے مبینہ طور پر اجتماعی جو ہے وہ زیادتی کروائی ہے. اب اس تمام تر صورتحال کے بعد متاثرہ لڑکی جو ہے وہ اپنی اور اپنی بیٹی کی جان بچا کر موقع سے بھاگی اور پولیس کے پاس جو ہے وہ پہنچ گئی. جلد بازی اور جذبات میں آ کر کیے فیصلوں پر اکثر پچھتانا پڑتا ہے. گھر سے بھاگ کر شادی کرنے والی خاتون 5 برس بعد ہی در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئی. خدارا اپنی بیٹیوں کو تنہا مت چھوڑے اور بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ وہ جذبات میں آ کر فیصلے نہ کریں.
कानून के रखवाले लड़की की फरियाद सुनते तो आज उसको इस तरह जलील और ख्वार न होना पड़ता। शर्मनाक वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। तालीमी इदारों में भी बच्चे महफूज नहीं हैं। हवस के पुजारी हर जगह घात लगाए हुए हैं। सर, ये जितना भी जो कुछ भी हुआ है, सबसे पहले मैं चकवाल तमाम इंतज़ामिया का तहे दिल से मशकूर हूँ। ख़ास तौर पे डीसी साहब का, डीपीओ साहब का, एसपी साहब का, डीएसपी साहब का, एसी साहब का, जिन्होंने बर वक्त और किसी गफलत का मुजाहरा नहीं किया और अपने तमाम फ़रेज़ को, मनसबी को बर वक्त बरूकार लाए और तमाम मुजरिमों को गैफ़ किरदार तक पहुँचाया। बस उन्होंने यही कहा है कि इन बच्चों के लिए हम अच्छा कोई तालीम का बंदोबस्त वगैरह करेंगे, ठीक है, और इंशाल्लाह ये बच्चे जो आवाज़ बने हैं तो ये पाकिस्तान के तमाम इदारों को, तमाम मदारस को और तमाम स्कूलों के लिए एक इस बुराई के ख़ात्मे के लिए ये आवाज़ उठी है। तो इंशाल्लाह हम इसके कुछ ना कुछ हुकूमती लेवल भी इक़दाम करें। नहीं, मैं इदारों के बारे में तो कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो अदारा है, ठीक है, और ये जिससे शख्सियत नहीं है जो बना के गई है ना, खालिद हसनैन खालिद साहब, जिनकी ये ज़ात है, जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और उनका मज़ार भी इस अपने इदारे के साथ है, ठीक है। तो वो इतनी बड़ी जो बिल्डिंग दे गए हैं, वो इंसान सारी ज़िंदगी अपनी हलाल की जो कमाई है इस पे लगा के गए हैं। तो डेफिनेटली मैं तो ये चाहता हूँ कि ये इदारा भी जो है यहाँ पे उसको अब इंतज़ामिया जो भी करेगी तो उन पे डिपेंड करता है। वर्षा परेशान है। 14 बच्चों को दरिंदगी का निशाना बनाया गया है। वर्षा की नजरें कानून और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर लगी हुई हैं। वर्षा के मुताबिक उनकी लड़ाई मदरसों से नहीं बल्कि जिनसी भेड़ों से है, जिन्होंने मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी की है। जो मौजूद हुआ है इसका बहुत ज़्यादा हम मन करते हैं और ये मदरसा जो है ये इसका नाम बहुत अच्छा है और इसको चलाने वाले अच्छे लोग हैं। खुली कचहरी के दौरान ये मामला मेरे नोटिस में आया, फ़ौरन मौके पे विज़िट करके इसको वेरीफाई किया गया और दोनों मुल्ज़मान को ज़िला मियांवाली और ज़िला रावलपिंडी से स्पेशल टीमें कंस्टिट्यूट करके उनको गिरफ़्तार किया गया। और जो मौका पे जो एविडेंस है, जो नाइफ़ की सूरत में है, PFSA की टीमों ने फुटेजेस हासिल की हैं और साथ में जो ट्रेस एविडेंस के लिए शीट्स हासिल की हैं वो एविडेंस के साथ प्रोसेस की जा चुकी हैं। क्राइम सीन की प्रोसेसिंग के अलावा जो इसकी मदरसा की इंतज़ामिया है, प्राइमरीली उन्होंने अपने तौर पे उनको जब ये बात पता लगी, जो कि आज से कुछ दिन पहले थी, तो उन्होंने फिल फॉर अपनी इंटरनल इंक्वायरी करके उन दोनों को एक्सपेल कर दिया था। लेकिन प्राइमरीली कानून की ज़ुबान में किसी भी गलत चीज़ का होना, उसको छुपाना भी उसी के मुतरादिफ होता है कि जैसे कि एक क्राइम कमिट हुआ हो। तो प्राइमरीली मुल्ज़मान गिरफ़्तार हैं। इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जो है वो सिर्फ़ जुर्म को छुपाने की नोयत की हद तक उनकी ज़िम्मेदारी है और मैं ये समझता हूँ कि जब भी कोई ऐसी चीज़ आपके नोटिस में आए जो जुर्म से मुताल्लिक़ है तो विद इन नो टाइम जो इस तरह का हीनियस क्राइम है वो नोटिस में लगाया जाना चाहिए ताकि जो असल किरदार है उनको सज़ा मिल सके। अब देखें, असल किरदार अब भी जो है उनको सज़ा मिल रही है या वो अपनी 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे पुलिस के पास हैं। इन्वेस्टिगेशन के सारे मराहिल पूरे की जा रहे हैं, उनकी पॉइंटेशन पे कुछ चीज़ें बरामद भी की गई हैं। साथ ही साथ जो 15 विक्टिम हैं टोटल, उनमें से जो विक्टिम हैं प्राइमरीली उनके जिस्मों पे तशद्दुद के निशानात हैं, जैसे कि जेड का लेटर बनाया गया है उनके जिस्म पर और उससे मुतल्लिक और जो मेडिको लीगल सर्टिफिकेट है उसके मुतल्लिक तमाम की तमाम चीज़ें सफ़ाई मिसल पे लाई जा चुकी हैं। मैं इसमें ये बताता चलूँ कि जो ये निशान बनाने वाला चक्कू था वो भी हम इसको रिकवर कर चुके हैं। मुल्ज़म ने इसको तस्लीम किया है कि वो इसकी मदद से सिर्फ निशान बनाता था ताकि निशानी रहे कि ये बच्चा मेरे पास पढ़ता है और मेरे पास से हिफ़्ज़ करता रहा है। अपार्ट फ्राम दिस, चूँकि मदरसा की इंतज़ामिया को इस बात का इदराक था, उन्होंने फ़ौरन फिल फॉर उन्होंने जैसे ही नोटिस में उनके आया उन्होंने बंदों को एक्सपेल किया है। लेकिन इसमें ये ज़िम्मेदारी का नमूना जो एक माशरे का भी है कि अगर कहीं पे भी आप कोई चीज़ देखें तो फ़ौरन बताएं ताकि पुलिस उसके ऊपर एक्शन कर सके। अपार्ट फ्राम दिस वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ आपके नोटिस में आती है फिल 415 पे कॉल करें ताकि पुलिस अपना काम एज़ पर ला सर अंजाम दे सके। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। 2 मुल्ज़िमान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। इंतज़ामिया भी गायब हो गई। ऐसा लगता है जैसे मदरसा इंतज़ामिया भी इस शर्मनाक वाक़े में मुलव्विस है। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, मदरसे को सील किया, तब इंतज़ामिया जागी और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। बंदा हमने रोपड़ से गिरफ्तार करवा दिया और एक बंदा हमने मियांवाली से गिरफ्तार कर दिया। ये उस दिन जुम्मे वाले दिन मगरब तक या मगरब से थोड़ी देर बाद तक का वाक़या हो चुका था। उसके बाद रात को हमें खबर मिलती है कि जनाब कुछ एक पुलिस इंस्पेक्टर का फ़ोन आता है
कि जनाब हम आपके मदरसे में जा रहे हैं और वहाँ से हम तकरीबन 18 बच्चे या 17 बच्चे हम लेके आ रहे हैं उनके मेडिकल मुआयने के लिए। हमने कहा ठीक है, इदारा आपके सामने मौजूद है, लेके आना चाहते हैं, कोई मसला नहीं है, लेके आएँ। थोड़ी देर बाद हमें वालिदैन की कॉल आनी शुरू हो जाती है कि हमें थाने के अंदर से कॉल आई है कि आप जनाब आएँ और आपका बच्चा हॉस्पिटल में मौजूद है और हमने मुआयना करवाना है उसका। उन्होंने फिर हमें रब्ता किया कि ये क्या वाक़या है, तो हमने बताया कि ये वही वाला वाक़या है जो आपको उस दिन हमने बताया था। तो उसकी कंप्लेंट की तरफ से आज पुलिस ये वाला एक्शन ले रही है। उन्होंने कहा कि यार ये तो हमारा मसला ही नहीं था, हमने तो इस बारे में आपको सामने हर चीज़ क्लियर कर दी थी। देखें, उनका ज़ाती मामला है, किसी के ऊपर भी हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हमारे पास फैक्ट्स सारे हैं, लेकिन हम किसी वालिदैन को ये नहीं कह सकते कि आप ज़बरदस्ती वो चीज़ कराएं। हमें उनकी प्राइवेसी का एहतराम करना चाहिए, हमें उनके डिसीजन का एहतराम करना चाहिए। और मैं इन लोगों को ख़ास तौर पे स्पेशली क्रेडिट देता हूँ कि जिन्होंने ख़ुद निकल के सामने आके, ये कोई छोटी बात नहीं है कि निकल के सामने आके ये बात को बताना और सारा कुछ करना। तो उन लोगों को और इन बच्चों की प्राइवेसी को भी प्लीज़ हमें सबको, गवर्नमेंट साइड को भी, मीडिया साइड को भी हमें रखना है। ना बच्चों को हमें नाम बताने चाहिए, ना बच्चों की तस्वीरें दिखानी चाहिए। और जो नई मेडिकल करा रहे, बिल्कुल हमें उनसे कोई शिकवा नहीं है, वो उनकी प्राइवेसी और उनका राइट। देखिए, कानून हम बना नहीं सकते, लेकिन हमारे जो मुमकिन है, जो ऑलरेडी कानून है उसको भी देख लेंगे, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। प्लस डेफिनेटली कुछ ना कुछ, मैं आपसे एग्री करता हूँ 100%, ताकि कल को ये वाक़या ना हो। असल मकसद तो ये है कि इन्होंने आइडेंटिफाई किस लिए किया है, उन्होंने वजह ये बताई है कि जी इसलिए किया है ताकि आइंदा को ये बच्चों के साथ इस तरह की ज़्यादती ना हो सके। थप्पड़ भी तुझे नहीं मार सकते। अगर बच्चा नहीं सबक याद कर रहा, साड़ी तरफों टीचर ਨੂੰ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾ ਦਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨਸੀ तशद्दुद इस सड़क की शिकायत नहीं। रूपोश होने वाले अफराद खुद को बेगुनाह कर रहे हैं। उनके मुताबिक उन्होंने इंतजामिया के कहने पर खुद को पुलिस के हवाले भी किया था। उनके असातिज़ा उनके इदारे से आए थे, उनकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन हुई थी, उनके इल्म में नहीं था कि ऐसा कोई वाक़या हुआ है। अब सवाल ये है कि 14 बच्चे हवस का निशाना बन गए मगर किसी को खबर न हुई। मुजरिमाना खामोशी का किसे जिम्मेदार कहेंगे? जी बिल्कुल, देखें, ये अफसोसनाक वाक़या कुछ दिन कबल थाना सदर की हदूद चौआ चौक में वाक़या एक मदरसे में उस वक्त सामने आया जब एक तालिब इल्म को लेने उसके वालिद आए तो अपने बच्चे को परेशान जानकर मालूम किया तो उसने सब बता दिया कि मदरसे के 2 असातिज़ा ने उस समेत दीगर 14 तलबा को मुबैना बदफेली का निशाना बनाया और साथ ही उनके जिस्मों पर चाकू के निशानात भी बना रहे थे। जिसके बाद मैं आपको ज़िक्र करना ज़रूरी समझूंगा कि DPO चकवाल कैप्टन वाहिद महमूद का, जिन्होंने इस मामले को उनके इल्म में आते ही इसकी संगीनी का अंदाज़ा लगाया और फिलफौर दोनों मुलज़मान की गिरफ़्तारी करके मुकदमा दर्ज किया। जहाँ तक बात ज़िम्मेदारी की है, ये तो यकीनी तौर पर मदरसा इंतज़ामिया का अगर पहले इस बात का इल्म था तो उन्हें मुकामी पुलिस को इतला देनी चाहिए थी। जब इसातिज़ा के बच्चों पर तशद्दुद की बात सामने आई तो वो तहकीक कर लेते तो ये शायद सब ना होता। कितने अरसे से ये शैतानी खेल चल रहा है? देखें, ये सिलसिला अब तक की हासिल करदा मालूमात के मुताबिक गुज़श्ता तकरीबन 1 माह से जारी था, तलबा को मुबैना बदफेली और तशद्दुद बनाने का। मुल्ज़िमान ने एतराफ़ जुर्म किया, मदरसा इंतज़ामिया क्या कहती है और वरसा कहाँ तक मुतमईन है? जी देखें, जब तक मुल्ज़मान के इतराफ़ जुर्म की बात है तो इस हवाले से अभी तक कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि अभी मुल्ज़मान रिमांड पर पुलिस के पास है और इनसे तफ्तीश का सिलसिला जारी है। जब चलान जमा होगा तब ही सामने आएगी असल हकीकत। जहाँ तक मदरसा इंतज़ामी की बात है तो उनका यही कहना है कि कानून और मेरिट पर की जाने वाली तफ्तीश के लिए पुलिस से मुकम्मल तावन कर रहे हैं, जबकि वर्सा भी पुलिस से तफ्तीश से काफ़ी मुतमिन नज़र आते हैं। 14 बच्चों के साथ बदफाली के वाक़यात ने पूरे इलाके को परेशान कर दिया है। ऐसे संगीन जुर्म में मुलव्विस अफराद को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। महंगाई ने हर एक को परेशान कर रखा है। कलील तनख्वाहों में गुजर बसर करना मुश्किल होता जा रहा है। कई ऐसे हैं जो ज़रूरत के तहत कर्ज लेते हैं, अक्सर अय्याशी के लिए भी पैसे उधार ले लेते हैं। जब अदायगी की बारी आती है तो हीले बहाने बनाते हैं। काम गए ना भाई सानू नहीं लम, लेकिन कि सानू रात नूं इतला मिली कि फलां जगह पर जिहड़ी है ना कि उस तरह गड्डी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डेड बॉडी पई। ਅਸੀਂ मौके पर गए हाँ, खैर बाकी अगू जिहड़े ना
ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸੀ। ਇਹ DSP ਸਾਹਿਬ ਤੇ DPO ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਬਿਲਖਸੂਸ SHO ਫਿਆਜ਼ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ। गुरसा पुलिस तफ्तीश से मुतमईन है, मुलजिमान पकड़ा जा चुका है। सफाक मुलजिम कौन था, पुलिस की तफ्तीश में क्या क्या सच सामने आया, कई राज फाश होने बाकी है। इत्तला मिली थी कि हेडनाला बन पे ना एक गाड़ी खड़ी है करोला और उसमें एक लाश पड़ी है। तो उस पर SHO साहब भी वहाँ पहुँच गए, फिर मुझे इत्तला थी, मैं भी वहाँ पहुँच गया। तो बंदे को सर में फायर लगा हुआ था, हमने फिर उसकी वहीं पे टीम्स बुला ली थी, PFSA की भी और दूसरे अपने PSA जो हैं वो भी सारे बुला लिए थे और अफसरान को बता दिया गया। तो गाड़ी की जो नंबर प्लेट है वहाँ से हमने उसे ट्रेस किया तो पता चला कि बंदा बरनाले का है, गाड़ी बरनाला से बुक होके आई थी। खालिद महमूद नामी शख्स था जिसकी लाश थी। तो लवाकिन से रब्ता हो गया और वो भी आ गए। तो उसके बाद फिर आगे जो तफ्तीश चलती रही तो मुद्दईआन की रहनुमाई से और हमारी वो सारी जो काविश थी, जो टीम सारी आई थी, उससे फिर हमने एक बंदा जो है वो आइडेंटिफाई इन्होंने किया कि जी ये बंदा, इस पर हमें शक है, उस्मान नामी, जो वहाँ मुलाजम भी था उसी पंप पे जो मकतूल खालिद का था। उस्मान को फिर ले आए। तो जब उस्मान को हमने तफ्तीश किया तो उसने सारा वक़ुआ बता दिया कि मैंने कैसे उससे पैसे लिए थे और फिर मैंने नीयत ख़राब हुई और मैंने यहाँ ला के उसे मार दिया, फायर मार दिया। और उसने फिर उसी तरह आगे जाके ख़ुद से वो पिस्टल भी और मोबाइल भी बरामद करवा दिया। तो हमारा ये जो अंधा कत्ल था उसने बड़ी चालाकी होशियारी से मुलज़म ने बरनाला से बंदे को यहाँ ला के हमारे थाने में तो कत्ल करके छोड़ दिया था कि ये, लेकिन अल्लाह की ज़ात पाक ने करम किया और हमने वो ट्रेस कर लिया और इसको गिरफ़्तार कर लिया। इसने कुछ 2.5 लाख रुपए उनसे लिया था, कर्ज़ लिया था। तो वो मांगता था वापस मेरे पैसे दे दो। उसने कहा बजाय पैसे देने के मैं इसे वैसे किससे तमाम कर दूँ इसका। मुलजिम ने उधार वापस करने की बजाय कत्ल जैसा संगीन जुर्म क्यों किया? खालिद महमूद मकतूल को सर में गोली मारकर नामालूम मुलज़मान ने कत्ल कर दिया था। और हमारी जब DSP सदर सर्कल मलका अदनान से बात हुई तो उनका यही कहना था कि मैं और थाना टांडा के SHO फियाज अहमद अपनी भारी टीम के हमरा जब हमें पता चला तो हम जाए वक़ुआ पर पहुंच गए थे। मकतूल के भाई की मुतय्यद में मुकदमा भी दर्ज कर लिया था। पता लगाया कि उनका ड्राइवर उस्मान नामी जो शख्स है उन्होंने खालिद महमूद मकतूल से 2.5 लाख के करीब रकम जो सी है कर्ज में ले रखी। पेट्रोल पंप मुलाजिम के पास असलहा कहाँ से आया? जो मुलजिम था उसके कब्जा से 30 बोर जो पिस्टल है वो भी पुलिस ने अपने हवाले कर लिया था। और ये पिस्टल जो है जो अपने घर से साथ लेकर आया था। उधार देकर मदद करना मालिक के लिए मौत का जाल बन गया। सफाक मुलाजिम ने चंद पैसों की खातिर खून की होली खेली। ऐसे जलाद सिर्फ शख्स को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि ऐसे वाकयात रोनुमा न हो। रुख करते हैं अगली कहानी का। तो हर घर में लड़ाई झगड़ा तो होता रहता है। छोटी छोटी बात पर अक्सर मियाँ बीवी के दरमियान तकरार हो जाती है। करीबी अजीज सुलह करवा देते हैं मगर अब तो इन्हें लड़ाइयों की वजह से कत्ल व गारत जैसे वाकयात होने लगे हैं। परवेज मेरा चाचा ही इस परचे का मदई है मैं इन्हों लड़ाई झगड़ा चलता रहता ही। असी ना पिंडों अपने दोस्त नूं नाल लिया, सानूं तलाह मिली कि लड़ाई झगड़ा ना चले दा। तो चल पहले भी एक दो बार समझाण गए हैं तो चल दोबारा समझाने चल गए की वजह की गलबात है क्यों झगड़ते पिना है। तो शक्करगढ़ गए अपने मामे नूं जाकर नाल लिया खलील रहमान नूं ते चाचे के घर चला गया। चाचे ने जाके तो चाचे के घर जाके बैठे जिस टाइम ते उन्नी देर नूं गल्लां बातां होण लग पियां चाचे दियां की गल है तुहाडी की बात है क्यों तुसीं करदे इस तरह रोज़ रोज़। तो असीं फिर उन्नी देर नूं अली अहमद भी बाहरों आ गया, असीं इस तरह बैठे थे तो चाची उच्चे उच्चे बोलना लग पई है कि इन बात नहीं आना तो इनू प्यार की जबान साड़ी समझ नहीं आती पी की वजह। उन्नी दिन अली अहमद कारी का इलाज तो समझदा नहीं पिया, बड़े दिन होया समझांदियां। अली अहमद उन्नी देर अंदरों निकलिया, चाची ने रौला पाया, चाची ने फड़ लिया चाचे इंज करके साढ़े देखते ही फड़िया इंज करते अली अहमद ने पिछों आन के गर्दन से वार कर छड़िया। उन्हें इस तरह करके वार किया जिस टाइम से देखा वो हथ फिर टोका ही
ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਦਨ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਚਾਚਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੱਜਾ, ਚਾਚਾ ਥੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖੌਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਹੋਰ ਮਾਰ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਜੇ ਹੋਰ ਮਾਰ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿਚਨ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਕਿਹਨੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾ, ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਵੇਟ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾ, ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਸੁਣੀਆ ਕਿ ਚਾਚੀ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਮੋਟਰ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਖੂਨ ਖਾਣ ਧੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣੇ ਪਿਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਨ ਬਾਅਦੋਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖਿੜਕੀ ਸਾਨੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਡਿੱਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਕੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ 2-4 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਅਤੇ ਅਲੀ ਹਮਜ਼ਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁੰਡੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਹਨੇ ਖੋਲੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਅਸੀਂ। अली हमजा नस गया इथों। वुरसा ने अपने आंखों से खून की होली देखी। संगदिल बेटे ने माँ बाप की लड़ाई पर टोके के वार करके बाप को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने ही वुरसा को किचन में बंद किया और लाश ठिकाने लगाने की कोशिश की, मगर शोर शराबी की वजह से उसे भागना पड़ा। अगे झगड़ा चलता पाया इन्हों का, दोवां जियां का। असीं जद समझाया ना करो इस तरह, लोगों को मना, जो तुसीं करना तो आराम नाल बैठ के करो। नहीं जी ये है वो है फलाना इस तरह हो गया, असीं इहनूं ये कर देना। बाहरों मुंडा आ गया अली हमजा नाम का, तो उन्हें आके अंदर वड़िया तो टोका फड़ लिया हत्थ च। असीं देखिया तो चलो मजाक करन लगा होएगा, तो हुण वार किया, छार अग वड्डी गया, डिग पिया, एक सिर च मारिया तो खत्म हो गया। असीं डरदे मारे अंदर कमरे च किचन च वड़ गए, बाहरों कुंडी लाती है। तो बाद इन्होंने गड्डी लियांदी है बाहरों जाके, तो गड्डी दे विच इन्हां लाश खिच के सुट्टी है, तो असीं रौला पाया, तो किसी ने पुलिस नूं फोन कर दिता, पुलिस आ गई है। लड़ाई हो रही सी घर आया मैं तो लड़ रहे सी जैन नाल आपस दे विच जैन नाल, ते मैं घर आया तो अगे समझाया मसां कि टालन की कोशिश की कि ना एंजे होए, तो उस दौरान मसां कि नहीं कोई समझ चली ऐसी, तो टोका सी सारा, टोके दे नाल फिर जैन वाल साहब का कतल हो गया मेरे को। तो कतल होने तो बाद सर उतों बाडी वगैरह मैं जानना जिस तरह मेरे को हो सकिया मैं उन्होंने समेटिया जानना, तो बाल साहब टैक्सी चलाते रहे सन, तो मैं डिग्गी दे विच उन्होंने डर गया, तो घबरा के डिग्गी दे विच जाके मैं वो बाडी में जानना सुट दिता। तो घर जिहड़ा ब्लड वगैरह सी सर वो साफ वगैरह मैं किया जान। मुलजिम अपना जुर्म तस्लीम कर रहा है। उसके बकौल उसी ने ही अपने बाप को टोके के वार करके कत्ल किया और फिर जाए वकुआ भी साफ कर दिया। वो तो लाश ठिकाने लगाने वाला था, मगर शोरो गुल सुनकर मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए थे। ते घर च कला बड़ी लगी दी ही, ते मुंडा बाहरों आया ते समझाया पापा अपने नूं, ते मैं ये लग पिया छडाण कुड़ी नूं लग पिया पुट्टण, ते मैं भी इन्हां नूं छडांदी पई, मैं पुत्तर ना लड़ो, इत्थे तां रोज छिंज ही नहीं मुकदी, मैं स्यापा अंतरा। ते फिर उधर इन्हां दे लग लुग गईयां, मुंडे कोल भी वज गई गुस्से विच आख मेरी भैन जवान नूं मारदा, मां नूं मारदा रोज़, तो फिर मुंडे कोल भी लग गईयां। ते मैं फिर डोली मुंडा कहंदा भी खून साफ कर, फिर मैं फटाफट खून खान साफ किया उत्थों, ते मैं पता ना लग जे फिर किसी नूं, मैं की हुण करिए, तो वो फिर जरा धोता छड़िया ही सारा ही उत्थों। ये महल्ला रशीदपुरा है सिटी शकरीगढ़ में। ये 15 नवंबर को रात 9:30 बजे ये बड़ा एक दिलखराश वाक़या पेश आया, जिसमें बेटे ने अपने बाप को कत्ल कर दिया। इसके पीछे कहानी ये थी कि मियाँ बीवी का आपस में झगड़ा रहता था। ये इसकी दूसरी बीवी थी और इसमें से इसके 3 बच्चे हैं और जो 2 बच्चे हैं इस औरत के वो पिछले खामद से थे। ये जो कातिल है ये पिछले खामद से था। मियाँ बीवी का झगड़ा रहता था, कुछ वजूहात थी इनकी डोमेस्टिक, जिसकी वजह से ये मुश्तइल हो के तो इस माँ बेटे ने मिल के परवेज़ को कत्ल किया है, टोके के वार किए उसने। और चूँकि ये लड़का जो है इसकी भी कुछ 22-23 साल उम्र है और ये मुर्गी का कारोबार करता है, तो उस टोके के ज़रिए इसने उसके गर्दन के ऊपर वार किए। बाद में माँ और बेटे ने मिल के वो जो बेड शीट है उसके अंदर गठरी की सूरत में इसको बांधा, और जो टैक्सी वो चलाता था वो जो कि प्लानिंग के तहत उन्होंने पहले उसने खड़ी की हुई थी बाहर गली में, उसकी डिग्गी में रख के वो फ़रार होने लगा। तो जो रिश्तेदार को इसके आए हुए थे, 1-2 बंदे इधर थे, तो उन्होंने शोर किया, तो
वो गाड़ी को छोड़ के फ़रार हो गया। बाद में जो उसकी माँ है उसने क्राइम सीन को साफ़ किया और खून को साफ़ किया, धोया, और बेड जिस चारपाई के ऊपर भी वो उसको कत्ल किया था उसको भी धो के तो वो भी वहाँ से फ़रार हो गई। करे कि आज हमने 2 दिन के बाद इसको दोनों माँ बेटे को गिरफ़्तार कर लिया है। DPO साहब जनाब राना ताहिर रहमान साहब ने बड़ा कंसर्न शो किया था और उन्होंने हमें रहनुमाई और हदायत भी दी और हमें फैसिलिटेट भी किया। हमें जो है टेक्नोलॉजी जो हमारी कंप्यूटर की है टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी, उसके ज़रिए से हमने इनको दोनों माँ बेटों को जो कि फ़रार हो चुके थे मौके से, इन दोनों को हमने गिरफ़्तार कर लिया है। इसमें SHO सिटी एतजाज़ बशीर और जो हमारे सारी टीम है उन्होंने अल्लाह की मदद से और बड़े शार्ट टाइम में इस कत्ल को जो है वो इस कातिल को पकड़ लिया है और इंशाअल्लाह हम इस मुकदमे को मुकम्मल जो है वो मेरिट के ऊपर तफ्तीश करके जो उसके लवाहिकीन हैं मकतूल परवेज़ के, उसको हम इंशाअल्लाह मुकम्मल इंसाफ फराहम करेंगे। पुलिस की तफ्तीश में मुलजिमान एतराफ़ जुर्म कर चुके हैं। संगदिल मुलजिमान ने मकतूल जमील को कत्ल करने के बाद लाश छुपाने की भी कोशिश की, मगर नाहक कत्ल कभी नहीं छुपता। मुदाई अगर जाए वकुआ पर थे तो मुलजिमान ने उनको क्यों छोड़ दिया? पुराने लड़ाई तैश में आए मुलजिम को वहशियाना तौर पर टोका चलाते देखकर डर के मारे खुद को बचाने के लिए मौके पर मुद्दई ने करीबी कमरे में छुपकर खुद को महफूज रखने की कोशिश की तो मुलजिमान ने फौरी कमरे के बाहर से कुंडी लगा दी। बाप बेटे में ऐसे कौन से इख्तलाफात थे कि नौबत कत्ल तक पहुंच गई? मुलजिम सतीले बाप को मां के साथ रोजाना की बुनियाद पर झगड़ते देखकर तंग आ चुका था। मुलजिम सतीले बाप को ऐसा करने से मना करता था तो मकतूल परवेज़ ने दोनों माँ बेटे को घर से निकलने की धमकी दी, जिस पर तकरार हुई जो झगड़े की सूरत में इख्तियार कर गई और नौबत कत्ल तक पहुंच गई तो मुलजिम ने लर्जा खेज वक़ुआ कर दिया। संगदिल बेटे ने मां के कहने पर बाप पर टोके के वार कर दिए। बूढ़ा बाप बेटे की मिन्नत समाजत करता मौत की आगोश में जा सोया। बीवी और बेटे के लिए वो उम्र भर मेहनत मजदूरी करता रहा, उन्होंने ही इसको जिंदगी छीन ली। ऐसे संगदिल मुलजिमान को सख्त सजा मिलेगी तो ही कानून के तकाजे पूरे होंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान मारिया नज़ीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।